Assalamualaikum students. In the fourth lecture of the chapter number 1, class 9 chemistry, fundamental of the chemistry, we are going to discuss about the topic compound. In the previous lecture we discussed about the what is element, what are the characteristics and the classification of the elements, what is the characteristic of the element. We discussed about the two characteristics of the element, that is the valency and the symbol. And in the last we see the some examples of the elements and with the symbol and valency, and here is the some other examples of the element with the symbol and valency. Here you can see that chromium, ammonium, hydronium, hydroxide, cyanide, bisulfate, bicarbonate, carbonate, sulfate, sulfite, thiosulfate, nitride and phosphate. You have to learn the symbols, formulas of these radicals and their valency. For example, you must know what is the symbol of the carbonate, CO3 2 minus, sulfate SO4 2 minus, sulfide SO3 2 minus. You have to learn by this method. Okay. And the next, after seeing what is the valency, valency is the combining capacity, जुड़ने की, मिलने की काबिलियत एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. एंड नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द वेरिएबल वैलेंसी. वैलेंसी का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेरिएबल? चेंजेबल, तब्दील होने वाला, जो कि तब्दील होने के काबिल हो, जो कांस्टेंट ना हो, एक जैसा ना रहता हो. यानी कि फुल पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ एक वैलेंसी शो नहीं करते, वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं. अब अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं तो कुछ कंपाउंड्स में उनकी वैलेंसी एक होगी, फॉर एग्जांपल 1 होगी, तो दूसरों में +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, यानी कि चेंजेबल होगी. अब हम आगे चैप्टर नंबर 2 में ऑर्बिटल सब शेल्स का कंसेप्ट रीड करेंगे. ये आपने बात याद रखनी है कि जो वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, डी सब शेल इन्वॉल्व होता है. और इसको डिटेल के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. यहाँ पे आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि वो एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनमें डी सब शेल इन्वॉल्व होता है. Some elements show more than the one valency, that is they have the variable valency. यानी कि सिंपल, कुछ एलिमेंट्स जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हों, हम उन्हें क्या कहेंगे? दे हैव द वेरिएबल वैलेंसी. वी आल्सो नो द नेम ऑफ द iron, and the symbol of the iron is the Fe, from their Greek name, that is the ferrum. Greek name of the iron is the ferrum, and the symbol Fe is derived from their Greek name. Now we say that iron shows the variable valency. It means in some compounds it shows the +2 valency, and in some compounds it shows the +3 valency, and the +2 is lower than in numerical value than the +3. यानी कि +2 छोटा है एज़ कम्पेयर टू +3 के. और ग्रीक लैंग्वेज में छोटे को हम OUS से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम फेरस कहेंगे, FERROUS, फेरस. यानी कि जब आयरन किसी कंपाउंड में +2 वैलेंसी शो करेगा तो हम उसका नेम फेरस रखेंगे, और जब वो किसी कंपाउंड में +3 वैलेंसी शो करेगा, हायर वैलेंसी, यानी कि एज़ कम्पेयर टू +2 के, +3 is greater than the +2, so we say that higher valency than the previous +2, so we say that ferric. यानी कि लास्ट पे हमने IC लगाया है, यानी कि IC का सुफिक्स साबका, बाद में आने वाला. IC सुफिक्स तब यूज़ होता है जब हायर वैलेंसी शो की हो आयरन ने, और OUS तब यूज़ होता है एज अ सफिक्स जब
लोअर वैलेंसी शो की हो आयरन ने इन सम कंपाउंड्स. Now, next, what is the compound? Next, our topic is the compound. Compound is a substance. We already read the term substance. The pure form is called a substance. यानी कि compound किसे कहेंगे? जब कोई चीज़ pure form में मौजूद होगी, मिलावट नहीं होगी, impurity नहीं होगी. Is a substance made up of two or more elements. We also discuss the meaning of the elements. Chemically combined. We also discuss the meaning of the chemical and the physical properties. It means यहाँ पे रिएक्शन होगा किन का? एलिमेंट्स का. और आगे जो चीज़ बनेगी वो बहुत प्योर होगी और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी. अब वो केमिकली टुगेदर है इन अ फिक्स रेशियो बाय मैस. आप एक टर्म रीड करोगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मैस. हमारे पीरियोडिक टेबल में 2 वैल्यूज लिखी होती है हर सिंबल के ऊपर. एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मैस नंबर. मैस नंबर होता है सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब हर एलिमेंट का जो मैस नंबर होता है हमने उसकी यहाँ पे रेशो निकालनी है. जैसे कि रेशो अगर हम निकालें वाटर की, वाटर का फॉर्मूला हम सबको याद है H2O. If we see the atomic masses of the hydrogen and oxygen, atomic masses of hydrogen and oxygen, the atomic mass of the hydrogen is the 1. Here there is the 2 hydrogen in the 1 molecule of the H2O water. So we multiply by the 2, यानी कि 1 multiplied by 2 is equal to 2, and the atomic mass of the oxygen is 16. If we say that what is the ratio in between the 2 ratio 16, 2 और 16 में क्या रेशो होगी? तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड कर दें. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशो बाय मैस जो होगी वो 1:8 आएगी. इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स के दरमियान रेशो बाय मैस निकालने के लिए हमारी बुक में एक पीरियोडिक टेबल दिया गया है. उसमें से हम उसका मैस नंबर चेक करेंगे, वो राइट डाउन करेंगे, तो फिर हम उसको सिंपली मैथ में जैसे हमें 6 7 8 में रेशो निकालना सिखाई जाती है, सिंपल स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड कर दे. और तब तक डिवाइड करना है जब तक वो फर्दर डिवाइड ना होते हों. जैसे कि 1 और 8 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट डिजिट रेशो आ गई है. तो ये वाटर के मॉलिक्यूल में इनकी रेशो है किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस की. नाउ वी अगेन सी डैट कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है. और वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली. और जो नया बनने वाला है वो टोटली डिफरेंट होगा प्रीवियस से. जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. बिकॉज एलिमेंट का हमने रीड किया था कि इज मेड अप ऑफ दैट टाइप ऑफ द atom that have the same type of atom having the same atomic number and cannot be broken down into its simplest constituent by ordinary chemical processes. तो H2O क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम है, सेम अटोमिक नंबर है. O2 क्या है? सेम एटम है, सेम अटोमिक नंबर है. इट मीन्स ये दोनों क्या है? एलिमेंट है. अब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं. अब वाटर क्या है? एक कंपाउंड है और इनके दरमियान केमिकली बाय मैस जो रेशियो है वो क्या है? 1:8 है. इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? जब कार्बन और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली. जब कार्बन और O2 आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास CO2 बनेगी. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और डैट इज़ अ कंपाउंड. और अगर हमें इनकी रेशो निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? कार्बन का जो मैस होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. अगर 16 यहाँ पर CO2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2. तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा. और अब अगर 12 और 32 की सिंपलेस्ट रेशियो निकाली जाए, इन्हें डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा 3:8. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड.
In the previous slide, we discussed what is the compound. Now we discuss characteristics, properties, खसूसियात क्या होती हैं कंपाउंड की. जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर बनता है, H2O बनता है, जो कि एक कंपाउंड है, तो क्या वो कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा? एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. यानी कि हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग हैं, वाटर की अलहदा है. वाटर जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड दैट हैव द इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज. और जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, हालांकि वो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है. And the next is that the compounds cannot be broken down into its constituent element by the simple physical method. हम कंपाउंड को सिंपल फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. अब वो सिंपल फिजिकल मेथड में हम फिल्ट्रेशन, अभी एक वर्ड रीड किया होगा हमने 6 to 8 में. फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे आप चाय के पत्ती के दानों से लैदा करते हो और उसे स्ट्रेन करते हो, तो ये आप फिल्ट्रेशन का अमल कर रहे हो. तो ये एक फिजिकल मेथड है. हम इस तरह के फिजिकल मेथड से कंपाउंड वाटर को उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिजिकल मेथड से कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड. नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज द आयनिक एंड कोवलेंट. Ionic compound. When the compound is formed by the loss and the gain of the electron. जब दो एलिमेंट के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने के नतीजे में, तो हम उसको आयनिक कहते हैं. आयनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं. डू नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट मॉलिकुलर फॉर्म. अब हमारे पास एक NaCl का मॉलिक्यूल है, NaCl साल्ट, जो कि हम अपने घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने खानों में यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए. तो हम कहते हैं कि वो एक सिंगल NaCl के फॉर्म में नहीं है. ये NaCl का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा है. आप दे सकते हो कि ये एक जो रेड लाइन शो हो रही है, ये एक आपने XYZ एक्सिस रीड किए होंगे, XYZ. ये NaCl का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट है. यहाँ पर हमें एक Na और एक Cl नज़र नहीं आ रहा. हम एक NaCl को हाथ से अलग नहीं कर सकते, या हम किसी भी डिवाइस, किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी भी टेक्निक के थ्रू हम एक सिंगल NaCl नहीं सीन कर सकते. अब यहाँ पर जो ग्रीन बॉल है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो दूसरी ऑरेंज रेड कलर की बॉल है वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रही है. बहुत से सोडियम बहुत सी क्लोरीन को सराउंड करते हैं, और क्लोरीन सोडियम को और सोडियम क्लोरीन को इस तरीके से सराउंड करते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है कि ये एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, जुदा नहीं होने देते. कशिश ऐसी पैदा हो जाती है. और ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस केव क्यों है, ये मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स शो किया है कि ये 3 एक्सिस XYZ के एक्सिस के अलोंग इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हम इन्हें कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं. और अब इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पॉजिटिवली चार्ज केटाइन एंड द नेगेटिवली चार्ज एनाइन. नाउ व्हाट इज़ द केटाइन एंड द व्हाट इज़ द एनाइन. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटाइन होता है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है. पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. इसको डिटेल के साथ हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक्स में रीड करेंगे. Now, what are the examples of the ionic compound? One example we already discussed, that is the NaCl. We also use it as a salt in our homes. And the another example is the KBr, potassium bromide. And the another example, CuSO4, copper sulfate. Now, when we know that the ionic bond
is present in this compound, we say that these compounds are represented by the formula unit. Here, this is the formula unit of the NaCl. You can see it on your screen. This is the formula unit of the NaCl. यानी कि आयनिक कंपाउंड्स का जो एक 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये आप ही की बुक के चैप्टर नंबर 4 से मैंने एक डायग्राम लिया आयनिक कंपाउंड की, और ये इसे हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं. नेक्स्ट, कोवलेंट कंपाउंड. कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. यानी कि हमने आयनिक में कहा कि वो सिंगल NaCl मौजूद नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि एक Na और एक Cl के दरमियान बॉन्ड है. हम कहेंगे कि बहुत से Na और बहुत से Cl आपस में अट्रैक्टेड है और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और वो फॉर्मूला यूनिट है. लेकिन हम कहते हैं H2O एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को सराउंड कर रहा है. और इसका जिस तरीके से आप रीड करते हो कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, एक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है. एक कोवलेंट कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है. और मॉलिक्यूल भी हमारा इसी चैप्टर का टॉपिक है. HCl एक मॉलिक्यूल है. HCl टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स भी मॉलिक्यूल बनाते हैं और टू सेम टाइप्स ऑफ एटम्स भी मॉलिक्यूल बनाते हैं. और जिस तरीके से आयनिक कंपाउंड में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला यूनिट से, हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. कोवलेंट कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. फॉर एग्जांपल H2O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? वाटर का. HCl एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. H2SO4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का. CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन नेचुरल गैस का. एंड द नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ द कंपाउंड्स विच इज आल्सो गिवन इन योर बुक, एंड द कंपाउंड इज द लॉन्ग क्वेश्चन. अगर बोर्ड में आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी एग्जाम्पल्स वहाँ पे राइट डाउन करके आओगे. वाटर का केमिकल फॉर्मूला यू हैव टू लर्न इट H2O. सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, एंड यू आल्सो हैव टू मेमोराइज द कॉमन नेम ऑफ द सम कंपाउंड्स. सोडियम क्लोराइड कॉमन नेम क्या है? कॉमन साल्ट NaCl. सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? सैंड रेत SiO2. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा NaOH. सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O. एंड 10H2O राइट करना मस्ट है. कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम CaO. कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है लाइमस्टोन CaCO3. शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4. अमोनिया का फॉर्मूला है NH3. स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न इट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.